Now, we are starting the first topic of P3, that is algebra. Algebra में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी. Different algebra is a very vast topic के और marks gaining भी है. It's not difficult. It's not difficult. बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी algebra में, थोड़ा time भी हमें ज़्यादा लगेगा complete करने में, ठीक है? लेकिन आप देखेंगे the things are not difficult. डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा नहीं होगा. होपफुली आप लोग इजीली कर सकेंगे, राइट? अब अलजेब्रा में जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ अलजेब्रा वी आर स्टार्टिंग, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ अलजेब्रा वी आर स्टार्टिंग इज modulus. The first topic of algebra is modulus, right? What is modulus? जरा ये चेक करते हैं कि modulus है क्या. So the modulus is, if we have, for example, if we have 2 written in 2 bars, ये क्या कहलाते हैं जनाब? These are called modulus. ठीक है? Modulus always deals with the magnitude of anything, the value of anything, but not with the sign, right? अगर हम यहां से modulus हटाते हैं तो it will be positive or negative to anyone, right? Modulus हमेशा value को बताता है, not the sign. Modulus हमेशा value को बताता है, not the sign, right? For example, अगर लिखा हुआ है जनाब x modulus, so it will be plus minus x. हमें नहीं मालूम कि ये positive x है या negative x है, वो बाद में हमें पता चलेगा कि positive x है या negative x, right? So modulus only deals with the value, the magnitude, right? Not with the sign. Okay? Modulus के ऊपर we have some questions. कुछ questions हैं हमारे पास modulus के ऊपर और वो हमें यहाँ पर solve करने होंगे. For example, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है जनाब x plus 1 equals to 3. x plus 1 equals to 3. What is the value of x? The value of x is 2. The value of x is 2. Very simple. 1 उस साइड पर गया, 3 minus 1 is 2, right? But if we have modulus on both the sides, if we have x plus 1 in the modulus, then how we solve this question? कैसे solve किया जाएगा? अब हम ये नहीं कह सकते the result, the value of x is 2. अब ये नहीं कहा जा सकता. अब देखते हैं how to solve this. देखते हैं how to solve this, right? Now, I'm doing by the first method. This is method 1. I'm doing by the first method. Stop working. Just look at the board. So now modulus हटाया गया तो x plus 1 equals to plus minus 3. X plus 1 equals to plus minus 3. Can I write it like x plus 1 equals to 3 and x plus 1 equals to minus 3? What is the value of x? The value of x is 3 minus 1, 2, and minus 3 minus 1, minus 4. These are the two values of x. Any confusion? Is it simple? With confusion? No. I'm doing the same question by method 2. Now, method 2 is, stop working all of you, just look at the board. Method 2 is
मॉड्यूलस एक तो एलिमिनेट कैसे हो सकता है, अगर हम राइट साइड पे प्लस माइनस अप्लाई कर, एंड द सेकंड मेथड टू एलिमिनेट मॉड्यूलस इज स्क्वायरिंग बोथ द साइड, x plus 1 whole square equals to 3 square. This is the second method to eliminate modulus, right? So now x plus 1 whole square will give you x square plus 2x plus 1 equals to 9, and x square plus 2x minus 8 equals to 0. By middle term breaking method or by using your calculators, you can get the values of x, जो कि आएंगी 2 and minus 4. Right? By both methods, the result is same. दोनों मेथड से रिजल्ट सेम आएगा. Now, which method, कौन सा मेथड यूज किया जाए? You guys have to use method 2 in every question. हर क्वेश्चन में you guys have to use method 2. एक ही मेथड रखें, मेथड 1 से करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेथड 2 से आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अगर राइट साइड पर कांस्टेंट आ रहा है x plus 1 मॉड्यूलस इक्वल्स टू 3 कांस्टेंट, देन मेथड 1 इज वेरी सिंपल. लेकिन अगर ऐसा आ जाए यहां पर भी ये हो जाए 3x plus 4, फिर डिफिकल्टी हो जाती है, कहां प्लस माइनस लगाएं, मतलब मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो हमें एरर के चांसेस कम कर दें. तो एरर के चांसेस कैसे कम हो सकते हैं? ऑलवेज अप्लाई मेथड 2. एरर हो ही नहीं सकता, एरर हो ही नहीं सकता. ठीक है. नाउ वन मोर एग्जांपल, आई एम डूइंग वन मोर एग्जांपल. For example, a question is here. For example, a question is here. X minus 3 equals to 2x plus 1. We have to solve this. We have to solve this, right? Again, by using method 2, squaring both the side. Squaring both the side. अगर इसका स्क्वायर किया जाए x minus 3 का, तो it will be a square minus 2ab plus b square equals to a square plus 2ab plus 1. 4x square minus x square will give you 3x square. 4x plus 6x 10x. 1 minus 9 minus 8 equals to 0. Now by using calculator हम x की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे. यहां पर आपने कुछ शो नहीं करना कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग है क्या है, नथिंग. यस, डायरेक्ट जरूरत नहीं है. अब आप देखें कैलकुलेटर से हम कर रहे हैं. 3 10 minus 8 2 upon 3 minus 4. The values of x are 2 upon 3 minus 4. Any confusion? Any confusion? No. Clear? So, according to this, you don't have to copy these examples, as you have to do some questions here. Now, here are now you guys have to do these 4 parts. Hurry, start working.
Okay, guys. After that, for example, we have another question. Question number 2 about the modulus. What we have in this. The question is here. What is the difference between question number 1 and 2? Question number 1 में modulus आपको दिया गया था with equality, and here we have modulus with inequality, right? क्या कभी आपने आज से पहले inequality का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? कब पढ़ा है? एएस में पढ़ा है? ठीक हो गया। एएस के कौन से टॉपिक में पढ़ा है? क्वाड्रेटिक्स में पढ़ा है। फर्स्ट टॉपिक ऑफ एएस में ही आप लोगों ने इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, सही है? उसी की हेल्प लेते हुए हम आगे चलेंगे। नाउ आई एम डूइंग दिस फर्स्ट पार्ट। Now, question number 2, first part. What we have in this, x plus 1 greater than x minus 3. How to solve this? Again, squaring both the sides. So it will be x squared plus 2x plus 1 is greater than x squared minus 6x plus minus 6x plus 9. Yes, come hurry up. So, अब आप देखिएगा जरा, x square cancel out. 6x plus 2x will be 8x. 1 minus 9 will be minus 8, greater than 0. Simply x is greater than 1. It's very simple question जिसमें आपके पास quadratic equation या quadratic inequality form ही नहीं है. But in case अगर हमारे पास quadratic equation या quadratic inequality form हो जाए, for example part C, it will be x plus 4 greater than or equals to 2x minus 3. How to solve this? Again, squaring both the sides. A squared plus 2ab, 8x plus 16 is greater than or equals to 4x squared minus 12x plus 9. ठीक हो गया? अब देखिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम इसको राइट साइड पर लेकर आ रहे हैं ताकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहे. इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8x minus 20x. 9 minus 16 minus 7 and 0 is here. Any confusion? No. जब भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व हो तो इनइक्वालिटी होनी चाहिए लेफ्ट साइड पर, वैल्यूज जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट साइड पर और 0 राइट साइड पर होना चाहिए. So if I'll write this 3x squared minus 20x minus 7 here, 0 अगर इधर है टेल एक्सप्रेशन की तरफ तो यहां पर भी टेल एक्सप्रेशन की तरफ less than equals to 0. Less than equals to 0. Now, after that, again we have to solve this quadratic equation by using our calculators. So it will be, the first value is 3, second value is minus 20, and the third value is minus 7. 7 and minus 1 upon 3. These are the two values. X equals to 7 and minus 1 upon 3.
बच्चों these are called critical values. These are called critical values. क्या ये रिजल्ट है? No, this is not the result because क्वेश्चन है इनइक्वालिटी में, तो रिजल्ट भी इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में ही होगा. क्वेश्चन जब इनइक्वालिटी में है तो रिजल्ट भी इनइक्वालिटी की ही फॉर्मेट में होगा. एएस में आप लोगों को याद करवाया गया होगा, if the expression is less than 0 then how to write the result. If the expression is greater than 0 then how to write the result. हमें भी याद करवाया गया था, आपको भी याद करवाया गया, आप भी भूल गए, हम भी भूल गए, सब भूल गए. तो ऐसी चीज करें ही नहीं हम जो हमें याद करनी पड़े. चीज ऐसी करनी चाहिए जो याद रहे. क्या बात है अली साहब. चीज ऐसी करनी चाहिए जो याद रहे, ऐसी नहीं करनी चाहिए जो याद करनी पड़े. ठीक है. तो अब कंफ्यूजन स्टार्ट, हाउ टू राइट द रिजल्ट. लेकिन कंफ्यूजन अभी खत्म होगी और लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इसके बारे में आप लोग कि हाउ टू राइट द रिजल्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज. एक चीज ध्यान में होनी चाहिए, बस एक्सप्रेशन होना चाहिए लेफ्ट साइड पर लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर की टर्म is always positive. The term of x square must be positive. Then the rule is to write the result of quadratic inequality is you just have to write x. जो भी साइन इनइक्वालिटी का है वही साइन दोनों तरफ लगा दीजिए. Always the smaller value towards left and the larger value towards right. क्या चीज अभी बता. हाँ exactly. It means the values are. It means the values are. It means the possible values are between -1/3 and 7. Possible values are between them. और एक कंडीशन होती है कि आउट ऑफ द these critical values, उसके लिए अब हम आपको बता रहे हैं. फिर वही चीज याद करना, ग्राफ बनाना हम याद नहीं करेंगे, हम ऐसी वर्किंग करेंगे कि हमें याद हो जाएगा. ठीक है. अब सुनिएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर for example if this equation, this inequality is like 3x squared minus 20x minus 7 is greater than 0, then how to write the result? The critical values are same. 7 and -1/3. Critical values are same. 7 and -1/3. How to write the result? You just have to write x. जो भी साइन है वो साइन दोनों तरफ लगाइए. स्मॉलर वैल्यू हियर, लार्जर वैल्यू. खत्म. आप लोगों ने x is smaller than smaller और x is greater than greater ऐसे भी किया होगा. if the sign is of greater than or greater than equals to. Now you don't have to write in this form. ये फॉर्म याद रखनी पड़ती है हमें और ये फॉर्म याद हो जाती है. क्लियर? जो भी साइन इनइक्वालिटी का होगा वो साइन x के दोनों तरफ लगा के स्मॉलर वैल्यू टुवर्ड्स लेफ्ट, लार्जर वैल्यू टुवर्ड्स राइट, रिजल्ट जनरेट हो जाएगा. You don't have to memorize anything for writing the result of quadratic inequalities. Confusion clear? Clear? The situation is like this. बाहर होगा. अलग अलग कर रहे हैं. इसको मैं क्या पढ़ रहा हूँ? x is smaller than -1/3 and x is greater than 7. वही तो चीज है, मैंने मिलाकर लिख दी.
ताकि याद करने की जरूरत ना हो। ठीक है, सो यू गाइस हैव टू राइट योर रिजल्ट इन दिस फॉर्म। अब आप लोगों ने ऐसे रिजल्ट लिखना है। किसको? हियर नेगेटिव करें? नहीं, तो अगर नेगेटिव करेंगे तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे, सबको पॉजिटिव करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सही हो गया? सो गाइस, after that now you guys have to do some questions, and the questions are, this is question number 2, and the questions are, you have to do these 4 parts. Hurry up, start working. Okay, students, here, what is the answer of question number 1? Like this? Minus 6 upon 5, 2 upon 7. Now students, अब आप देखें, हर क्वेश्चन को आपने एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आए, राइट? ऐसा नहीं है कि एग्जाम में इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक हो गया? एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आएगा। तो जब भी एग्जाम में इसका कोई क्वेश्चन आए, you guys have to sketch the modulus function. स्केचिंग भी करना होगी। मोबाइल थोड़ा सा बेटा चेयर इधर करें आप, तो चेयर इधर कर लें। यस, सो स्केचिंग भी आपने एग्जाम में करना होगी, क्योंकि स्केचिंग से हमें पता चलेगा कि which answer is correct and which one is wrong, right? सब्स्टिट्यूशन से ही मालूम करते हैं हम कि which answer is right, which answer is wrong. स्केचिंग किया करें आप, ठीक है? अब आप देखिए, how to sketch the question. How to sketch the question. Now, for example, here is question number 1. X plus 1 equals to 3. X plus 1 equals to 3. And we are sketching this. X plus 1 equals to 3. Method 1 की जगह पर मैं इसको sketch कर रहा हूं। याद रखिएगा, जब भी आप स्केच करेंगे इसको, मॉड्यूलस फंक्शन से जब भी स्केचिंग होगी, स्टॉप वर्किंग, वो v बनाएगा, like this, or inverted v. Okay, and this tip is called vertex. This is called vertex. And how to find vertex? How to find vertex? जरा ध्यान में रखिएगा। If we have to sketch this function, अगर हमें इस फंक्शन को स्केच करना, लेफ्ट और राइट दोनों को अलग अलग कंसीडर किया जाएगा। कैसे? मैं लिख सकता हूं y equals to x plus 1 and y equals to 3. Y equals to x plus 1, y equals to 3, the both left hand side equals to y. तो जब भी हम इसको कंबाइन लिख सकते हैं x plus 1 equals to 3, right? Now I am sketching this function. I am sketching this y equals to x plus 1. वर्टेक्स कैसे आएगा? याद रखिएगा, जो भी मॉड्यूलस के अंदर हो उसको इक्वेट कर देना है आपने 0 से, उसको इक्वेट कर देना है आपने 0 से, और x की वैल्यू जनरेट कर लेनी। सो अगर इसको 0 से इक्वेट किया जाए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इक्वल्स टू -1, और y हमेशा 0 रहेगा।
y हमेशा 0 रहेगा। -1 यहां होगा -1, मतलब ये वर्टेक्स बनकर आया, ये वर्टेक्स बनकर आया। इस वर्टेक्स पर आपने क्या करना है, v बना देना है। कुछ भी नहीं, कितना ही ब्रॉड कर दें आप, कितना ही कम कर दें, कोई इशू नहीं, क्योंकि इट इज जस्ट अ स्केच, इट इज नॉट अ प्लॉट। प्लॉटिंग होती है, ग्राफ पेपर पर काम करते हैं तो पूरी एक एक चीज देखनी पड़ती है, बट हियर वी जस्ट हैव टू स्केच दिस। ये बन गया जनाब v, किसका बन गया, y इक्वल टू x प्लस 1 का। सेकंड क्या है, y इक्वल टू 3। क्या इसमें कोई मॉड्यूलस है, नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि y एक्सिस को कहां से इंटरसेक्ट कर रही है, 3 से कर रही है, जो कि y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है जनाब 3 से। So now it is somewhere like okay, it is somewhere like this, it is somewhere like this। ठीक है, अगर मैंने ये बना दिया तो दोनों इंटरसेक्शन कहां आ रहे हैं, नेगेटिव में। दोनों इंटरसेक्शन कहां आ रहे हैं, नेगेटिव, जबकि एक इंटरसेक्शन होना चाहिए नेगेटिव में, एक होना चाहिए। तो इट मींस ये लाइन हमने सही नहीं बनाई, ये लाइन हमने सही नहीं बनाई। बताते हैं भैया, हम इसका ग्राफ बना रहे हैं ना, इसकी स्केचिंग कर रहे हैं, तो क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू 3, so that's why it is a horizontal line parallel to x, so it means the line will be like here। अब आप देखिए, here it is 2 and here it is -4। आपके आंसर को स्केचिंग ने सपोर्ट कर दिया, इट मींस द रिजल्ट इज करेक्ट। कर रहे हैं आप, क्लास इज नॉट ओवर, राइट? यस, एग्जैक्टली, इसको 0 कर दें। When y is 0, it will be on x axis, right? ये हम कह सकते हैं, जबकि होता क्या है, x जो भी मॉड्यूलस के अंदर है उसको 0 से इक्वेट करवाते हैं, तो x plus 1 equal to 0, so x equals to -1। ठीक हो गया? एग्जैक्टली क्या हमारी स्केचिंग हमारे आंसर को सपोर्ट कर रही है, यस द आंसर इज करेक्ट एंड नथिंग मोर, राइट? आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 1 स्केच करते हैं जनाब, क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर। अब देखिएगा, दोनों तरफ आ गया मॉड्यूलस। नाउ फर्स्ट रेड से मैं इसको स्केच कर रहा हूं, x -4, what is the value of x? X equals to 4, y is always 0, x equals to 4, y is always 0, so x equals to 4, here it is 4, stop working, just look at the board। बन गया जनाब, एनी कंफ्यूजन? नाउ अब इसको स्केच कर रहे हैं हम बाय दिस ऑरेंज। बाहर 2 लिखा हुआ हो, 200 लिखा हुआ हो, 2000 लिखा हुआ हो, कोई मैटर नहीं, इसको छोड़ देंगे। ओनली दिस 3x plus 1 equal to 0, x equals to -1 upon 3। एक पॉजिटिव वैल्यू बनानी है, एक नेगेटिव वैल्यू बनानी है, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू हमें बनानी है। सो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस
and this. Okay students, इसमें थोड़ा सा ये जो v है स्पेशल v बन गया है, थोड़ा सा इसको दोबारा बना रहे हैं हम। -1/3 से ये लाइन इधर गई और v जब v लाइक दिस, इसको एक्सटेंड कर दीजिए थोड़ा सा, सो इंटरसेक्शन होना चाहिए। अब आप देखिए पॉजिटिव में इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है 2/7, नेगेटिव में इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है -6/5। सपोर्ट किया डायग्राम ने हमारे आंसर को, यस द आंसर इज करेक्ट। दोनों को बना सकते हैं, हमें अपने आंसर को सपोर्ट करना है किसी भी तरीके से, घुमा फिराकर ऐसे इंटरसेक्शन करवाना है कि वो हमारे आंसर को सपोर्ट कर रहा हो। ठीक है जी बिल्कुल, जब ही तो 2 v बने। नहीं, क्योंकि जबरदस्ती नहीं है, बेसिकली ये स्केच हो रहा है ना, इस वजह से हमें अपने आंसर को सपोर्ट करवाना है। पहले आंसर निकालेंगे फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर हमारा आंसर गलत निकला तो डायग्राम बन ही नहीं सकती, कुछ भी कर लो। अगर हमारा आंसर गलत हुआ तो डायग्राम बन ही नहीं सकती, कुछ भी कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा आंसर गलत होता, ये भी पॉजिटिव हो जाता, क्या डायग्राम बन सकती? हो ही नहीं सकता। आंसर को सपोर्ट डायग्राम उसी वक्त करेगी जब आंसर हमारा सही होगा। अब आइए वन मोर डायग्राम, एक और डायग्राम मैं स्केच कर रहा हूं। वन मोर डायग्राम। क्या मतलब? जरूरी है कि 2/7 पे इंटरसेक्ट हो। ये जो इंटरसेक्ट हुआ है मैंने बगैर देखे लिख दिया 2/7 -6/5, मतलब ये जरूरी है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में इंटरसेक्ट हो। तो पॉजिटिव में जहां इंटरसेक्शन होगा वो 2/7 है, जहां नेगेटिव में होगा वो -6/5 है। ये फिर तो स्ट्रेट लाइन बनी। यस गर्ल्स हियर, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। नाउ another क्वेश्चन दिया गया, आपकी बेटा बात आ गई, इक्वेशन आ गई। now we have to sketch this। एक पर मॉड्यूलस है, एक पर मॉड्यूलस नहीं है, तो जिस पर मॉड्यूलस है वो v बनेगा, जिस पर मॉड्यूलस नहीं है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब आइए x इक्वल टू -3, रेड से इसको मैं बना रहा हूं, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। एनी कंफ्यूजन? नो। अब इसको बनाएंगे जनाब, ये क्या है, y इक्वल टू 3x -4, 4/3, somewhere here 4/3 is 1 point something, 4/3 समझ में आ रही है? 4/3 हमने क्या किया, when y is 0, x is 4/3 when y is 0। ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की स्केचिंग तो कब से करते, क्लास 6 से करते हुए आ रहे हैं। when x is 0, y is -4, when x is 0 y is -4 means ये स्ट्रेट लाइन बनकर आई।
ये स्ट्रेट लाइन बनकर आई। ये y को कहां से टकरा रहा है? -4 से, और x को कहां से टकरा रहा है? 4/3 से। स्ट्रेट लाइन बनाइए सिर्फ। ठीक हो गया। इसके जो दो आंसर्स आप लोगों ने निकाले थे वो जरा बताइएगा। एक था 1/2 और दूसरा 7/2, 7/4। ओके, 1/2 को अगर मैं डेसिमल में लिखता हूं तो आएगा 0.5, और 7/4 को डेसिमल में लिखता हूं तो क्या आएगा? 1.7। ठीक हो गया, 1.8। स्ट्रेट लाइन बेटा। अगेन फिर से ग्राफ बना। ठीक हो गया, शुरू से कर रहे हैं। फर्स्ट y = x - 3, इसको स्केच कर रहे हैं। x = 3, 3 पर आए v बना दिया। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? सेकंड स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है जनाब? एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो। When x is 0, y is -4. When y is 0, x is 4/3. स्ट्रेट लाइन बना दी। एनी कंफ्यूजन? क्लियर? नाउ अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, अब सुनिएगा। प्रीवियस ग्राफ, इसमें क्या लिखा हुआ है जरा सुनते रहें। x - 4 लेस देन 2 3x + 1। इसको जरा मैं आसान लैंग्वेज में बताऊं आपको। ये क्या लिखा हुआ है? x - 4 नीचे हो और 3x + 1 ऊपर हो, क्योंकि x - 4 इज लेस देन। x - 4 का ग्राफ नीचे, 3x + 1 का ग्राफ ऊपर। x - 4 का ग्राफ रेड से बनाया हुआ है, 3x + 1 का ग्राफ ऑरेंज से बनाया हुआ है। x - 4 को नीचे रहना है, x - 4 को नीचे रहना है, रेड लाइन को नीचे रहना है ऑरेंज लाइन से, रेड लाइन को नीचे रहना है ऑरेंज लाइन से। सुनिएगा, क्या यहां पर रेड लाइन -6/5 के बाद नीचे है ऑरेंज लाइन से? ऑरेंज लाइन तो ऊपर चल रही। हियर इससे पहले रेड लाइन ऊपर है, ऑरेंज लाइन नीचे है, और 2/7 के बाद ऑरेंज लाइन ऊपर हो गई, रेड लाइन नीचे हो गई। तो जनाब कहां पर हमारा आंसर सेटिस्फैक्ट्री हुआ? जहां पर रेड लाइन नीचे हो, ये और ये सब। दरमियान में तो रेड लाइन ऊपर चल रही है, जब भी तो आंसर हमने लिखा -6/5 से कम और 2/7 से ज्यादा। -6/5 से कम, यही बैठे, -6/5 से कम और 2/7 से ज्यादा। मतलब ये इनइक्वालिटी आपको क्या बता रही है कि जब ग्राफ बनाए तो x - 4 नीचे हो उसका ग्राफ और 3x + 1 का ग्राफ ऊपर हो। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, ये इनइक्वालिटी आपको क्या बता रही है जनाब? हमेशा x - 3 का ग्राफ नीचे रहे और 3x - 4 का ग्राफ ऊपर रहे। ऑरेंज लाइन ऊपर हो, रेड लाइन नीचे हो। ठीक है, अब सुनिएगा, ये जो इंटरसेक्शन हुआ है ये किस जगह हुआ? 0.5 पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि बेटा इससे पहले 4/3 चल रहा है, 1 पॉइंट समथिंग। तो ये कहां पर हुआ होगा? 7/4 पर ही हुआ होगा, 1.8 पर। सही है? क्या कहा गया था? रेड लाइन नीचे हो। रेड लाइन नीचे है जनाब,
किसके बाद? 7/4 के बाद। क्या 7/4 से पहले रेड लाइन नीचे है? नो, रेड लाइन नीचे कब है? 7/4 के बाद। तो आंसर तो हमारे 2 जनरेट हुए, लेकिन जब डायग्राम बनाई गई तो पता चला रेड लाइन नीचे कहां पर है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 7/4। 7/4 के बाद रेड लाइन नीचे और ऑरेंज लाइन ऊपर। बात आ रही है समझ में? तो जनाब पता ये चला, स्केचिंग साथ में करेंगे हम, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जहां पर स्केचिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अदरवाइज क्या होगा, 4 मार्क्स में से आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन 1 मार्क आंसर का वो क्या हो जाएगा? वो नहीं मिल सकेगा। ऐसा नहीं है कि 0 कर देगा एग्जामिनर। सॉल्व करेंगे आप, अगर इसका आंसर आप लिख भी दें, दोनों के साथ, तो भी फुल मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, आंसर मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। लेकिन अच्छा है जब आसान चीज है स्केचिंग कर लें। स्केचिंग अगर हमारे आंसर को सपोर्ट कर रही है तो हम वो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखें, जैसे मैं ये बार बार कह रहा हूं कि कुछ भी करें आंसर को सपोर्ट स्केचिंग करती है। अब यहां पर आप कुछ भी करें, ये ऑरेंज लाइन 0.5 और 1.8 दोनों से गुजर ही नहीं सकती। इट मींस द बोथ आंसर आर नॉट करेक्ट। कोई सा एक आंसर सही है, आप कुछ भी कर लें इसमें, आप डायग्राम बना ही नहीं सकते। तो अगर हमारा आंसर गलत होगा तो डायग्राम बन ही नहीं पाएगी, और अगर आंसर सही होगा ऑटोमेटिकली डायग्राम बन जाएगी। बात समझ में आ रही है बच्चों? सो ये था जनाब आपके मॉड्यूलस फंक्शन विद स्केचिंग, राइट। वर्किंग आप लोगों ने क्या करनी है, आपको फाइल मैंने सेंड कर दी है जनाब व्हाट्सएप पर। पास्ट पेपर आपने सॉल्व करने क्वेश्चंस किसके? मॉड्यूलस फंक्शन। किसके जनाब? मॉड्यूलस। अब आप क्वेश्चन देखते रहिएगा, जहां जहां मॉड्यूलस आए, आई थिंक 10 to 12 क्वेश्चंस होंगे, वो आप लोगों ने सॉल्व करके आना है।